In a year, a woman applies 2 kg of chemicals on her. So we don't claim to be natural. We are certified. तो जैसे हम कह सकते हैं कि फूड में एक अडल्ट्रेशन होती है, तो स्किन केयर में भी कहीं ना कहीं अडल्ट्रेशन है। हाँ, बिल्कुल है। वो जो 10-15 साल पहले हॉलमार्क को कोई नहीं जानता था और आज उसके बिना कोई लेता नहीं है, यही कॉस्मोस के साथ होगा। आज की डेट में कॉस्मोस को कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं। 10 साल के अंदर कॉस्मोस वुड बी द नॉर्म। Hi everyone, this is me Pooja. I welcome you to the podcast series with SCO. This podcast series is to create awareness about healthcare and skincare. Today we have Mr. Anshul Dureja with us, who is the founder of SCO. Hi sir. Hi Pooja, how are you? All good. आप बताइए कैसे हैं? Us all well. Really excited for this first episode of this podcast series. Great. So the name SCO is very powerful and very unique. Usually brands who are into organic and natural skincare अपने नाम के आगे ना natural and organic लगा देते हैं, but SCO is very unique. What's the story behind it? We are one of those brands who claim to be authentic, and we don't have a name of natural and organic. You are absolutely right. In fact, अगर हम मैं देखूं, हमारी जब हमने स्टार्ट किया था तो हम जब नाम देख रहे थे तो हमने देखा कि इन हवाइन लैंग्वेज कोवो मीन्स चॉइस, तो हमने ये वर्ड कॉइन किया और हमने एक एस लगा दिया कि चॉइस फॉर योर स्किन. तो you have to be choosy for what you apply on the skin. We don't have anything in terms of SCO natural or SCO organic, because the name in itself stands for something very unique for your skin. So we are a fully certified natural and skincare brand, and that's the journey of the name हमारा नाम. That's really nice. Is there any aha moment why you started this skincare journey? Yes, in fact, a lot of people who know me personally over a number of years, they ask me this question ki you had a very different altogether mainstream career. So how you forayed into skincare? So you are absolutely right. Few years back, I got diagnosed with the autoimmune disorder. And that autoimmune disorder was a skin autoimmune disorder. तो जब मैंने देखा बहुत सालों तक तो काफ़ी मैं उससे परेशान रहा, बट मैंने अपने आसपास देखा तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाउ डू यू कीप केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्किन ड्यूरिंग दीज ट्रबल टाइम्स. तो स्किन केयर लेके आई डेल्व्ड इनटू स्किन केयर जो हम यूज़ करते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द स्किन केयर वी यूज़ इज ऑल सिंथेटिक्स. In fact, I have no qualms in admitting कि एक हम शैम्पू यूज करते थे एंड वी यूज इट फॉर 7-8 years. We were very happy because the performance was so good of that shampoo. तो तब पता चला एक दिन मीडिया रिपोर्ट में कि इट मे कॉज कैंसर. तो वहां से हमारा दिमाग घुमा कि हम क्या लगा रहे हैं हमारे शरीर पे, और दैट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग शैम्पूज इन इंडिया. और फिर luck by chance, couple of years back, my daughter was going to US, and when we were purchasing some safe skincare for her, हम देख रहे थे तो देखा कि कोई है ही नहीं. यानी everybody used to claim कि natural है, organic है. आप मॉल पे जाइए, आप ऑनलाइन सर्च करिए, there are a lot of products which claim to be natural and organic. बट वो क्या वो सही में है? जब हम ये क्वेश्चन पूछते थे मॉल्स में जाके, शॉप्स पे, कोई हमें आंसर ही नहीं दे पा रहा था कि ये नेचुरल ऑर्गेनिक है कि क्या कोई सर्टिफिकेशन है इंडिपेंडेंट जो सर्टिफाई करता है. ऐसा नहीं था. तो वहां से हमारा ट्रिगर आया, और वो जो आहा मोमेंट आप तलाश रहे हो, तो वो आहा मोमेंट वही था कि व्हेन मी एंड माय वाइफ यूज्ड टू थ्रॉन टू वेरियस ऑनलाइन शॉप्स एंड वेरियस ऑफलाइन शॉप्स, वी नेवर वर एबल टू फाइंड कि ऑथेंटिक स्किन केयर नेचुरल क्या है. सो वहां से हमने देखा, हमने काफी रिसर्च किया, spent close to around 1.5 years in terms of doing a research, and finally जाके फिर हमने decide किया कि there's a huge gap in the market and consumers परेशान हो चुके हैं एक trustworthy और authentic skincare ढूंढने में जो natural और organic हो. तो हम झूठ नहीं बोलते, we are what we are. So we don't claim to be natural, we are certified natural. So that is the distinction with which SCO got launched. And today I'm proud to say that it is the very rare, one of the very rare brands in India who have got certified
by Cosmos, which is a European standard, but now globally accepted and independently audited. सो जैसे हम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं, बहुत सारी ना आजकल न्यू न्यू ब्रांड्स आर लॉन्चिंग एवरी मंथ, हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स आर लॉन्चिंग. So as a consumer, it's very difficult to trust the efficacy and the safety of that product or the brand. So आपके लिए efficacy और safety में क्या important है? दोनों में से क्या important है? I would say सिर्फ ये 2 चीजें important नहीं है, 3 चीजें important है. तीसरी पे मैं आऊंगा. पहले आपने बोला एफिकेसी मैटर करता है और डिपेंड करता है वेरियस चीजों पे कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है. अगर मुझे अभी बाहर जाना है तो मुझे इमीडिएटली सनस्क्रीन चाहिए तो वो इंस्टेंटेनियसली एफिकेसी देगा, मुझे सन प्रोटेक्शन देगा. अगर मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा सा ब्राइटनिंग कुछ क्रीम लगा लूं या सीरम लगा लूं तो शायद मुझे वो 6 हफ्ते से 10 हफ्ते के बीच में मुझे इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा अच्छा सा. इनिशियली शायद कुड बी 1 वीक 2 वीक्स ऑल्सो. और अगर मैं एंटी एजिंग का कुछ करना चाह रहा हूँ, मैं अपने फाइन लाइंस और रिंकल्स थोड़ा ठीक करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो उस सिनेरियो में आपका जो स्टार्ट पीरियड होगा वो ही 12 to 16 वीक्स के बाद होगा. सो एफिकेसी बहुत डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन हम क्या लगाना चाहते हैं. बट अगर मैं बात करूं सेफ्टी को, सेफ्टी इज अनक्वेश्चनेबल, यानी दैट इज द सुप्रीम पीस. तो सेफ्टी के लिए आपको ये इंश्योर करना है कि आपके जितने हार्मफुल केमिकल्स हो वो नहीं हो. अब इसी से ही मैं तीसरा लिंक करता हूं जो मुझे लगता है कि सेफ्टी, एफिकेसी और एक इसी सीरीज में है, वो है ऑथेंटिसिटी. ऑथेंटिसिटी होना बहुत जरूरी है एक प्रोडक्ट का. बट अगर मैं एज ए ब्रांड ओनर बोलूं कि मेरे प्रोडक्ट्स ऑथेंटिक हैं, दैट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि मैं ही बोल रहा हूं. तो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू सी इज कि क्या हम अच्छे से एक प्रोडक्ट को जब हम जज करते हैं तो आर वी गोइंग बाय द क्लेम्स रिटन ऑन द पैकेजिंग और आर वी डूइंग और रिसर्च और रीडिंग समथिंग बियॉन्ड व्हाट इज शोन इन द पैकेजिंग. तो प्रिडोमिनेंटली जब हमने ये स्टार्ट किया स्कोहो, तो हमारे पास सिर्फ ये नहीं था कि हायर एफिकेसी देनी है या हायर सेफ्टी देनी है, हमें था कि इन दोनों के साथ साथ हायर ऑथेंटिसिटी भी देनी है. सो दीज आर द 3 डिफरेंट इंपॉर्टेंट पीसेस. सो एज यू मेंशन दैट एफिकेसी एक टाइम पीरियड में हम देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट डिपेंड करता है प्रोडक्ट कैसा है. तो क्या सेफ्टी भी हम एक टाइम पीरियड के बाद देख सकते हैं या इमीडिएटली हमें पता चल जाएगा ये नेम? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि सेफ्टी इमीडिएटली पता चल जाएगा. कई चीजों पे होता है, कई चीजों पे नहीं. अब जैसे कई प्रोडक्ट्स लगा के इमीडिएटली आपकी स्किन फ्लेयर अप हो सकती है. कई चीजें आपको बाद में जाके पता चलती हैं. अब जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने शैम्पू का आपको एग्जांपल लिया. दैट शैम्पू की जो स्टडी हुई थी, दैट यूज्ड टू कॉज कैंसर ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स. तो वो फेमस शैम्पू था फ्रॉम ए बिग ब्रांड. तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली पता नहीं चलता, पर ऐसा भी नहीं है कि इमीडिएटली पता चलेगा. मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इमीडिएटली नहीं पता चलता है. तो वी हैव टू बी रियली कॉशियस ऑफ व्हाट वी आर अप्लाइंग. मैं आपको एक और स्टैटिस्टिक्स देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोग बात नहीं करते उसके बारे में. बहुत साल पहले एक रिसर्च हुई थी, और ये बहुत साल पहले की बात है, तो मतलब अब तो उससे भी ज्यादा डेंजरस नंबर्स है कि इन ए ईयर ए वुमन अप्लाइज 2 kg ऑफ केमिकल्स ऑन हर स्किन. 2 kg, यानी एक साल में एक वुमन अपने फेस और बॉडी पे 2 kg केमिकल लगाती है. 2 kg केमिकल लगाती है और मोर देन 515 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स पर डे लगाती है थ्रू द फॉर्म ऑफ मेकअप, कॉस्मेटिक्स, एनी ब्यूटी प्रोडक्ट, स्किन केयर, हेयर केयर, एनीथिंग you talk about it. So that is a research being done globally, more than 515 ingredients and more than 2 kg every year. एक और ड्रेडफुल पीस है जो आ रहा है आज की डेट में मेट्रोस, टायर 2 सिटीज में. देयर इज ए ट्रेंड इन द अर्बन गर्ल्स ऑल्सो कि 15-16 साल से ये पूरा रूटीन स्टार्ट हो रहा है. तो अगर हम देखें कि एक लाइफ स्पैन में 50 साल अगर एक लेडी ये सब यूज कर रही है, तो 100 kg केमिकल इज बीइंग अप्लाइड इन ए लाइफ स्पैन. जस्ट इमेजिन. अब क्या उसको उसी समय पता चलेगा इसके सेफ्टी इश्यूज? नो, इट मे, बट चांसेस हैं कि नहीं पता चलेगा, एंड इट वुड हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर. अब इसी से रिलेटेड थर्ड एलिमेंट बताता हूं मैं आपको. द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इन इंडिया आर राइजिंग लाइक हेल. एज पर साइंटिफिक अमेरिकन जर्नल,
autoimmune disorders have reached to a epidemic level. अब मैं नहीं बोल रहा, ये रिसर्च है, आप जाके सर्च कर सकते हैं. Females have 4 times higher chances of getting autoimmune disorders. तो हमें ये बहुत जरूरी देखना है कि हम क्या लगा रहे हैं. So this is very paramount to be seen. So, is there any alternative for these chemicals or products? Yeah. So अगर आप देखेंगे, world is moving from synthetic beauty, then came clean beauty, और अब आ रहा है green beauty. I would be more than happy to share कि SCOHO is a green beauty brand, one of the very few green beauty brands in India who really are a green beauty brand, not for the sake of saying so. धीरे धीरे अगर हम देखें, कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा अवेयर हो रहे हैं. कंज्यूमर्स आर पुशिंग ब्रांड्स, कंज्यूमर्स आर पुशिंग कंपनीज टू गो मच मोर नेचुरल. बट वो नेचुरल की जर्नी जो है ना, नेचुरल पे ट्रांजिशन हो रहा है. बट हाउ डू यू ब्रिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ नेचुरलिटी इन दिस? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है. तो यहां पे जाके जो है वो फंसता है इवेंचुअली इक्वेशन. So if you really are looking for something safe and authentic, which is natural, Cosmos Signature is the worldwide biggest standard which could be really seen. So जैसे हम कह सकते हैं कि फूड में एक अडल्ट्रेशन होती है, तो स्किन केयर में भी कहीं ना कहीं अडल्ट्रेशन है. हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है. आप इस चीज को हम वो नहीं कर सकते. उसका मैं सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ. ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर इंडस्ट्री सब एक ही है. ब्यूटी एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री के अंदर ही ये पूरी हमारी इंडस्ट्री अनरेगुलेटेड है. और ये नहीं है इंडिया में, ग्लोबली अनरेगुलेटेड है. आज मैं बोल दूं मेरा ब्रांड क्लीन ब्यूटी ब्रांड है या ग्रीन ब्यूटी ब्रांड है, ये नहीं, देयर इज नो रेगुलेशन. लोगों को तो ये भी नहीं पता कि क्लीन ब्यूटी और सिंथेटिक ब्यूटी में फर्क क्या है. चलो ग्रीन ब्यूटी छोड़ देते हैं, वो सिर्फ नॉट इवन 1% brand in the world are green beauty brands. If I talk about clean beauty brands, people don't know the distinction. Clean beauty means yes, it is clean, it is better, yani ingredients are better. We have to make consumers aware that the clean beauty means that it is free from anything which has a free from claim is a clean beauty. Free from parabens, free from synthetics, free from sulfates, free from your phthalates, from your SLS, from artificial fragrances, anything. So all these free from claims means clean beauty. So the world is changing, the awareness is coming, but there is still a lot much road to travel on this. जैसे आपने भी बताया कॉस्मोस के बारे में एक रेगुलेशन है, इसके बारे में आप कुछ और डेप्थ में बता सकते हैं, कैसे स्टार्ट हुआ? बेसिकली कॉस्मोस स्टार्ट हुआ 2010 में, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में ये बहुत बड़े इशू थे जो आज हम देख रहे हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे, कि किस पे ट्रस्ट करें, व्हाट इज रियली नेचुरल. हर कोई बोलता है कि मेरा ये प्रोडक्ट नेचुरल है, हर कोई बोलता है मेरा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है. सो हाउ डू यू ट्रस्ट? तो वो जो ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी की बात आई, वहां पे ये आया कि यूरोपियन कंट्रीज ने स्टार्ट किया 2010 में, पब्लिश किया स्टैंडर्ड विच वाज कॉल्ड कॉस्मोस. तो कॉस्मोस इज बेसिकली a स्टैंडर्ड फॉर नेचुरल एंड ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स. ये उसका फुल फॉर्म है, कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड फॉर नेचुरल एंड ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड. जब ये स्टार्ट हुआ 2010 में, इट वाज ओनली फॉर यूरोपियन यूनियन. धीरे धीरे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती गई, क्योंकि ये स्पेस ही अनरेगुलेटेड है, तो लोगों ने इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस बनाना शुरू कर दिया. मजेदार बात बताता हूं आपको, कई ग्लोबल ब्रांड्स हैं जिनके कुछ प्रोडक्ट्स कॉस्मो सर्टिफाइड होते हैं. इंडिया में वो आते नहीं है प्रोडक्ट्स. सो जब आप हेल्थ एडल्ट्रेशन की बात कर रहे थे, बड़े बड़े एमएनसीज के अभी केसेस आए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक में आए हैं कि इंडिया के बाहर ज्यादा बढ़िया इंग्रेडिएंट्स हैं और यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ जाता है. पर ये सिर्फ इंडियन एमएनसीज के ब्रांड यहाँ पे नहीं है, ये रिवर्स भी है. इंडिया के भी ब्रांड जब बाहर जाते हैं, मच मोर क्लीनर एंड बेटर. कॉस्मोस में ये सब नहीं होता. कॉस्मोस मींस इट्स ए वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड. अगर एक प्रोडक्ट बन गया, वो पूरे वर्ल्ड के लिए बना है.
क्योंकि वो पहले इतना टफ स्टैंडर्ड से गुजरा है कि आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, आप उसमें डिस्टिंक्शन नहीं क्रिएट कर सकते कि ये मैं इंडिया में बेचूंगा, ये मैं ऑस्ट्रेलिया में बेचूंगा, ये मैं यूएसए में बेचूंगा, ये मैं यूरोप में बेचूंगा। हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके एवरी प्रोडक्ट विच इज सर्टिफाइड, इट्स फॉर पैन ग्लोबल। अब मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। आपने कॉस्मोस स्टैंडर्ड पूछा, कई लोग मुझसे पूछते थे कि आपने मेड सेफ क्यों नहीं किया, क्योंकि मेड सेफ बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है और बहुत पॉपुलर भी है। बहुत ब्रांड्स इंडिया के मेड सेफ है, बट अगर आप एक्चुअल डेप्थ में जाएंगे तो मेड सेफ अगर ये है तो कॉस्मोस ये है। उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि मेड सेफ सिर्फ आपके इंग्रेडिएंट्स को चेक करता है कि क्या उनमें कोई टॉक्सिन्स तो नहीं है। तो मेड सेफ की जो सर्टिफिकेशन है दैट रिलाइज ऑन टॉक्सिन फ्री इंग्रेडिएंट्स। कॉस्मोस की जो सर्टिफिकेशन है वो बहुत 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 होलिस्टिक है और बहुत डिफरेंट है। वो सिर्फ ये नहीं देता कि आपके इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं, वो देता है कि इंग्रेडिएंट्स की बैक स्टोरी क्या है। तो क्या वो इंग्रेडिएंट अपने आप में भी कॉस्मोस सर्टिफाइड हैं? तो एथिकल सोर्सिंग से लेके टिल द फिनिश गुड वो पूरा वैल्यू चेन देता है। उसके अंदर आपकी एथिकल सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स हो गई, आपके सारे रॉ मटेरियल आपके कॉस्मोस अप्रूव्ड होने चाहिए, आपकी पूरे पैकेजिंग होनी चाहिए। पैकेजिंग भी अप्रूव्ड है। पैकेजिंग भी अप्रूव्ड होती है पूरी कॉस्मोस से, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम लगा देते हैं। और कॉस्मोस जो है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है। थर्ड जो एलिमेंट आता है वो आता है आपकी फॉर्मुलेशंस भी अप्रूव होती हैं। आपने कभी अगर हमारा आप मोनो कार्टन देखिए, हर मोनो कार्टन के पीछे हमारा एक नेचुरलिटी इंडेक्स है। ये नेचुरलिटी इंडेक्स आपको सिर्फ कॉस्मोस सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स में ही मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो when we say it is natural, we are showing the component and the percentage of that naturality index. फिर आ जाता है रॉ मटेरियल पैकेजिंग फॉर्मुलेशन। फिर आ जाता है फोर्थ, आपका आ जाता है कि जो आपके क्लींजिंग एजेंट है वहां तक भी आप ये सोचिए कि आज की डेट में इंडिया में 95% जो है वो सब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है। एक किसी का बैच बना, ब्रांड ए का, ब्रांड बी का बैच बनेगा। अब वो ए और बी के बीच में क्लीन तो होगा ही होगा। भैया फर्स्ट का मेरा सब लेट से मेरा शैम्पू बन रहा है, सेकंड में मेरा उसी में मेरा सीरम बन रहा है या फेस वॉश बन रहा है। तो जब मैं उसको क्लीन करूंगा, मैं क्लीन कैसे करूंगा? तो क्लीन करने का मैं आपको एक एलिमेंट बताता हूं। जो क्लींजिंग एजेंट है एज पर कॉस्मोस स्टैंडर्ड, इवन दैट हैज टू बी सर्टिफाइड नेचुरल। तो क्लींजिंग एजेंट भी सर्टिफाइड होना चाहिए, ओनली देन यू कैन यूज इट। तो इतनी ज्यादा टफनेस है। एंड टू टॉप इट ऑल, ये कॉस्मोस स्टैंडर्ड में सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ स्टैंडर्ड्स ये चीजें अपलोड करनी, आपको अप्रूवल आ जाएगा ना। यू हैव टू गो थ्रू रिगोरस ऑडिट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑडिटेड बाय इकोसेट फ्रांस एवरी ईयर. It is not easy to get and attain a Cosmos certifications. That's why the brands which really go to attain this Cosmos, they are very purpose-driven brands. So we chose the latter. So as you mentioned that there are some big brands जिनके कुछ प्रोडक्ट्स कॉस्मोस सर्टिफाइड हैं बट उनके वो प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं है। नहीं है। तो क्या वो बिग ब्रांड्स ये लाइक उनका थॉट प्रोसेस ये है कि वो इंडियन ऑडियंस लाइक रेडी नहीं है? आई वुड से ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उनकी क्या थॉट प्रोसेस है। दे नो देयर थॉट प्रोसेस बेटर। आई डोंट वांट टू रिवील द नेम्स ऑफ द ब्रांड्स, बट you would be surprised to know कि they are very much prevalent in India, but still they haven't brought their Cosmos approved or Cosmos certified products to Indian markets. They know their strategy best, but जो मुझे लगता है शायद एक हमारे साथ एक इंडियन कंज्यूमर्स का टैग है कि इंडियन कंज्यूमर्स आर वेरी प्राइस सेंसिटिव। मुझे ऐसा नहीं लगता टू बी एंटायरली ट्रू। यस, कुछ हद तक सही है, इंडियन कंज्यूमर्स आर प्राइस सेंसिटिव, बट मुझे लगता है अब धीरे धीरे वो ट्रांजिशन आ रहा है जहां पे प्राइस सेंसिटिविटी से ज्यादा वैल्यू सेंसिटिविटी आ रही है कि व्हाट इज द वैल्यू आई एम गेटिंग एज ए कंज्यूमर। और अगर कोई ब्रांड, अगर कोई एक स्टोरी निकल के आता है कि जहां पे हम हमारे जैसे छोटे ब्रांड्स बोलते हैं वी आर ए स्मॉल बिजनेस, को इज ए स्मॉल बिजनेस, हमारे जैसे ब्रांड कुछ निकल के आता है और बोलते हैं कि वी आर ए पर्पस ड्रिवन ब्रांड एंड वी हैव दिस इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशंस टू बैंक अपॉन, सो डोंट ट्रस्ट अस, ट्रस्ट द सर्टिफिकेशन. I think the games could change and there would be slowly a movement which is going to, I would say, reveal in itself कि ये बड़े brands भी
प्रेशर में आएंगे टू लॉन्च मोर कॉस्मोस सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स इन इंडिया। इनफैक्ट मैं आपको और बढ़िया स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, आप कहीं पे भी सर्च करिए, जापान में हम के ब्यूटी बहुत करते हैं, there are a lot of brands of Korea which are now turning to Cosmos certifications. प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के अंदर अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है, कॉन्शियस लोगों को लगता है कि और कईयों को लगता है, इनफैक्ट माय ओन फ्रेंड्स हैव टोल्ड मी, अच्छा ये सर्टिफिकेशंस तो बहुत हैं, सर्टिफिकेशंस बहुत हैं, बट कॉस्मोस जैसा नहीं है, which is the toughest certification in the world when it comes to natural and organic cosmetics. Even the Chat GPT, if you check, it is all about Cosmos. तो टेक्निकली हम भी बोल सकते हैं कॉस्मोस इज अ हॉलमार्क फॉर स्किन केयर। अब बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, जब इनफैक्ट हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था 30th October 23 व्हेन स्कोहो केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो दिवाली बड़ी पास थी, और मेरा ये स्टार्टिंग में बिलीफ था और अभी भी है कि हम जब गोल्ड खरीदने जाते हैं 10-15 साल पहले लोग जानते नहीं थे हॉलमार्क क्या है, वो भी तो सर्टिफिकेशन था ना, पर हमें पता नहीं था इंडिया में। तो आज की डेट में हम जब जाते हैं, हम सबसे पहले पूछते हैं ज्वेलर से, हम कुछ भी गोल्ड ज्वेलरी ले रहे होते हैं कि भैया ये हॉलमार्क है या नहीं है। तो वही एक टाइम है जो अब वो जो 10-15 साल पहले हॉलमार्क को कोई नहीं जानता था और आज उसके बिना कोई लेता नहीं है, यही कॉस्मोस के साथ होगा। आज की डेट में कॉस्मोस को कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं। 10 साल के अंदर कॉस्मोस वुड बी द नॉर्म, एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव, मेरे पास सिंपल स्टैटिस्टिक्स है। ग्लोबली अगर मैं स्किन केयर मार्केट देखूं, द ग्लोबल स्किन केयर मार्केट अगर 1x पे ग्रो कर रही है हाइपोथेटिकली, नेचुरल स्किन केयर इंडस्ट्री आउट ऑफ दिस इज ग्रोइंग एट 2.5 to 3 times मोर। तो कंज्यूमर्स आर रियली लुकिंग फॉर नेचुरल एंड ऑर्गेनिक स्किन केयर। हमें सिर्फ ये अवेयरनेस क्रिएट करना है कि कॉस्मोस ही क्यों, और वाई कॉस्मोस सर्टिफाइड जो एक लोगो है उसकी वैल्यू क्या है। और यू वुड सी दैट इंडियन कंज्यूमर्स आर वेरी क्लेवर with the rise of too much of a Gen Z consumers and the mindsets coming in. People are very choosy for the product they use, and more than that, people are also choosy for the brands they use. So if you have something as a story of a green beauty where you are not only conscious about the skill wellness of your consumers, you are also very focused in terms of the sustainability and the eco impact you are leaving as a brand. Definitely there is a great surge of consumers we are going to see, which would really make Cosmos the hallmark of gold. So that is my response to it. So where do you see the skincare industry in the coming years? I would say currently there's a lot of greenwashing happening. I definitely am seeing कि with standards like Cosmos काफी कुछ control होगा in terms of greenwashing. There is a transitioning happening from synthetic beauty to clean beauty to green beauty. This is continued to grow. जैसे मैंने बोला 2.5 to 3 times X कैगर से ग्रो करेगा नॉर्मल स्किन केयर इंडस्ट्री, एंड देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी लॉट ऑफ इंडियन ब्रांड्स कॉन्करिंग द ग्लोबल एरिना। आई वुड से, मुझे लगता है ये ऑन द प्रोडक्ट पाइपलाइंस, आई वुड से इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा हम फोकस देखेंगे ऑन स्पेसिफिक निश कैटेगरीज। पर्टिकुलरली जो मुझे लगता है एक तो हो गया कि जो नॉर्मल डे इन एंड डे आउट जो आज की डेट में चलता है, एंटी एक्ने पोर्टफोलियो, योर जनरल स्किन केयर, हेयर केयर एंड स्टफ। मुझे लगता है एंटी एजिंग पे बहुत बड़ा फोकस आएगा। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क बीन हैपनिंग ऑन दिस कैटेगरी, एंड ऑल्सो देयर इज अ लॉट न्यू इंग्रेडिएंट्स विच आर कमिंग टू द मार्केट। पर्टिकुलरली मैं तो सिर्फ नेचुरल्स की बात कर सकता हूँ, सिंथेटिक्स मुझे पता नहीं है ना, मैं उस तरफ देखता हूँ। तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो आ रहे हैं हमारे उसमें, जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है और एंटी एजिंग सीरम। नाउ दैट सीरम इज ए वेरी पोटेंट सीरम। इट हैज ए रेटिनॉल। लोग डरते हैं कि रेटिनॉल लगाएंगे साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। पर्जिंग मैंने काफी देखा। हाँ, पर्जिंग देखा है, लोग बिल्कुल देखते हैं लोग। और अगर आप देखोगे नेट पे जाके कि बिगिनर फ्रेंडली रेटिनॉल, और दैट इज नॉनसेंस। बिगिनर फ्रेंडली रेटिनॉल, नाउ दैट इज कमिंग बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ सिंथेटिक्स इन दैट। सो अगर आप देखोगे, आप प्लांट बेस्ड बोटेनिकल्स वाले प्रोडक्ट्स लो, तो जो हमारा जैसे एंटी एजिंग है उसके अंदर हमने इतना बढ़िया यूनिक
इंग्रेडिएंट यूज किया है जो प्लांट बेस्ड रेटिनॉल है. वेरी 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 फ्यू ब्रांड्स इन इंडिया आर यूजिंग इट. आप हमारा सीरम यूज करके देखिए, 12 to 16 weeks you would start seeing some results in the anti-aging aspects, but then of course you have to carry it on. So anti-aging एक बहुत बड़ा कैटेगरी इन इटसेल्फ बनने वाला है, बिकॉज जो ये जनरेशन है धीरे धीरे एजिंग में तो जाएगी ही. आज की डेट में एंटी एजिंग मतलब ये नहीं है कि 45-50 years you would start anti aging. As soon as you hit 28-27 you would start applying anti aging products, so that balance comes on your face. So times are interesting for the skincare industry in a whole. That's really nice. So let's have a quick rapid fire round. Sure, all for it. Describe your brand in one word. Authentic. Somebody have to try Sco's one product. What would you recommend? I would say if you are a general consumer who's very low on usage of skincare, then cleansers are the safest and the best ones. So try your body wash and face wash. Both of them are global award-winning formulations. And if you are into skincare, sorry to cut you, but if you are into skincare, you have been applying some skincare already, serums and creams and stuff like that. That means you are an average consumer of skincare. Definitely go for our vitamin C serum. Your favorite ingredient? My favorite any day hyaluronic acid is one, but yes, plant-based. Does Sco reflect any aspect of your personality? Personality, yeah, a couple of them. I am also a consultant, and in my consulting experience, so I love speaking to people a lot. I love communicating and interacting with them. So I'm very close to my consumers. So we have a day defined every month wherein we speak to our consumers. And that gives me a lot of feedback and energy to get going forward. So nobody can teach you better than your own consumers. So I think I love speaking to them a lot. The second is that many years back, close to around 14-15 years back, I became, when I was working in my corporate avatar, I became a chief green officer for my company at that time. And I was perhaps one of India's first or second, I really don't know, very initial set of people who were there at that point of time who used to work on sustainability and sustainability. So I used to work in that domain. So that's why the green, the environment, the sustainability is very close to me. And that's why I was very clear that जैसी भी company बनानी है, it has to be a very, very eco-friendly and sustainable company. So ये दो aspects मुझे लगता है मेरी personality के काफी close हैं जो SCOHO में आज भी reflect होता है. Great. So it was a very lovely interaction with you. I hope upcoming week में हम दोबारा से एक interaction रखेंगे to gain some more knowledge. So certainly, I really look forward to it, and to all my consumers. मुझे लगता है कि don't only look at the podcast, but also look in terms of be very choosy in terms of what you apply. Me and my team have done a great deal of hard work. I'm not asking you to just try for the sake of trying, but definitely do try out the essence of Cosmos signature in Worldwide Cosmetics as it's spanning across. And really thankful to you, Pooja. thank you. So thank you so much, audience. If you like this video, please like, subscribe to the channel and share this video with your friends and family. Thank you. Thank you.